as we have discussed earlier that multiple points are of three types, sorry: node, cusp and isolated points, right? The nature of multiple point depend upon the nature of tangent, right? Tangents are real and distinct, then multiple point will be node. If tangents are coinciding, then the multiple point is cusp, and if the tangents are imaginary, then isolated point. So the first thing is, what is node, cusp and isolated point? Node is a point where loop exists. Suppose this origin for any curve, here at origin two tangents who are real and distinct, they exist. That means this point will behave as node. So what is the meaning of node? To be node in the curve, that means some loop kind of this. It will exist at this point origin. That means curve may be like this or like this or like this, right? So this point is responsible for the loop. This is the identification for node. For cusp means at that point where the cusp will occur, any sharp point or sharp edge will occur. We have done one example in the last class where the curve was like this. This was the tangent x equal to 2a, and this was somehow the curve, right? So at origin, only one tangent, I think x-axis was the tangent, and this point was working as cusp. We discuss about isolated point. Isolated point means that point which is separate, kind of that point will not be considered when you do the curve. That is the isolated means. Isolated in general language means अलग अलग रहना या फिर अलग रहना, जिसका नेचर सबसे अलग हो. सपोज करें क्लास में कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो किसी से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रखता, तो that student is isolated to other. And how it works in the curves, that suppose karo you have any curve which you need to draw, and this is the point which is isolated point. That means it will not be included when you draw the curve will be like this, suppose like this. Okay, this is the point which will work as isolated point, means it will not be considered or it will not help the curve to draw. Y square into x minus a equal to x square plus x square into x plus a, provided a is positive. So first what we will check? Symmetry. What will be the symmetry in this curve? About x-axis, obviously, because y is in even powers and x is in single powers also. So when you replace x by negative x, that here it is possible that equation will not change, but because of these single power or odd power, we cannot say that it is symmetric about y-axis. Y has even power wherever it occurs, right? If you substitute y as minus y, that means equation will be unchanged. That means symmetry about x-axis will occur. Y equal to x and y equal to negative x also will not happen in this curve, and symmetric about opposite quadrant also will not occur. That means first we have understood that this curve will have symmetry about x-axis. Okay, next is we have to calculate where the curve is intersecting the axis. So for x-axis, y will be 0. If y is 0, that means this left hand side is complete 0. That means
means x square into x plus a equal to 0. From here x will be 0 and x will be minus a. That means coordinates are 0 0 and minus a 0. Okay. For y-axis we have to keep x equal to 0. If x is 0, that means this complete part is 0. This is 0. That means minus a y square equal to 0. A is non-zero because a is greater than 0. That means y square has to be 0. That means y equal to 0. So 0 0 is the coordinate. Okay, so we have two coordinates here, 0 0 and minus a 0, from where the curve will pass or cut or whatever it is. Right? Now third is, in this you can check inflection point also. So for inflection point, what you have to do, the double derivative you have to substitute equal to 0. This part you can do yourself. Next is, what was the third point? Because curve is passing through origin, that means tangent at origin, what will be the equation of tangent? We have to substitute lowest degree terms of x and y equal to 0. This is 3 degree. In x and y, this is also 3 degree. So ये तो नहीं होगा. In two powers, this is minus ay square and a x square. So what it will be, a x square plus ay square equal to 0. A cannot be 0, that means y square plus x square has to be 0, from where y equal to plus minus iota x. That means tangents at origin are imaginary to each other. Okay, what it represents, that 0 0 will be isolated point. Asymptotes. Give me the asymptotes please. Equation has 3 power or 3 degree. That means it can have maximum 3 tangents, right? Not more than 3. So first we will check about parallel to x-axis. If we see a parallel to x-axis, that means you have to substitute highest degree coefficient, which is x cube here, because another terms which is appearing here in x is xy square. ठीक है, इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये लोवेस्ट है एक्सिस में. हाईएस्ट क्या है आपका एक्स क्यूब, उसका कोफिशिएंट क्या है 1, उसको आप 0 के इक्वल रखोगे. दैट इज नॉट पॉसिबल. दैट मींस नो एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस. इसके बाद जब आप पैरेलल टू वाई एक्सिस निकालेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वाई के जो टर्म है हाईएस्ट डिग्री टर्म सिंगल पावर ए की 2 एग्जिस्ट कर रहा है, उसका जो कोफिशिएंट है विच इज x minus a, that you have to substitute equal to 0. That means x equal to a is the equation of asymptote. तो एक मिली है अभी यहाँ से, पॉसिबल हो सकती है 3, तो हम ऑब्लिक पे भी काम करेंगे. तो सपोज करिए y equal to mx plus c is the equation of asymptote where m and c are unknowns, for which you will follow the procedure. क्या होता है, you will generate phi 3m. ठीक है, हाईएस्ट डिग्री 3 है तो यहाँ पे m3 है, उसके लिए phi 3m एक्सप्रेशन आप बनाएंगे, जिसके लिए आपको इक्वेशन में 3 डिग्री जहाँ अपीयर हो रही है वेरिएबल्स में, उसमें x को 1 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और y को m सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. तो 3 डिग्री का कौन कौन सा है, एक ये है एक्स वाई स्क्वायर और दूसरा क्या है एक्स क्यूब. तो ये क्या बनेगा, एक साइड में लेके आ गई इसको, तो ये मैं नेगेटिव में ले गई, तो ये मेरा बना वाई स्क्वायर, यानी देती हूँ मैं वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब. अब इसमें जहाँ जहाँ वाई है यू हैव टू रिप्लेस m और x को 1 से रिप्लेस करना. सो इट विल गिव यू m स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, नाउ phi 2m you have to consider. So what is the value of phi 2m? 2 डिग्री के जितने होते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस ए वाई स्क्वायर, यहाँ लिख लेती हूँ मैं, बाद में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस ए वाई स्क्वायर, और दूसरा क्या बनेगा, ये इधर लिखे गई मैं, माइनस ए एक्स स्क्वायर हो गया. तो इसमें जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे x को 1 और y को m, ये बनेगा आपका, मैं माइनस ए कॉमन ले लिया मैंने,
ये बना मेरा m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू टू कैलकुलेट रूट्स ऑफ m, व्हाट डू यू यूज टू डू, हाईएस्ट जो आप कोफिशिएंट एक्सप्रेशन बनाते हैं उसको आप 0 के इक्वल रखते हैं, दैट मीन्स m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स m is प्लस माइनस 1। रूट्स ऑफ m आर रियल एंड डिस्टिंक्ट टू ईच अदर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ m वी यूज टू कैलकुलेट c। सो जब आपके रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं रूट तो उसके लिए आप क्या करते हो, व्हाट इज द फॉर्मूला, phi 2 m phi 3 dash m, ये होता है। अब इसमें आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये रखेंगे जब आप, ये आप इसमें रखेंगे तो इसकी वैल्यू है नेगेटिव a m स्क्वायर प्लस 1, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो इट विल बी m स्क्वायर प्लस 1, और इसका डेरिवेटिव आप जब करो इसका करोगे तो कितना बनेगा 2 है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन। ठीक है, नाउ यू हैव द वैल्यूज ऑफ m, correspondingly you will get the values of c। जब आप m को 1 पुट करेंगे तो what will be the value of c, यहाँ रखो a भी है सॉरी। ठीक है, कितना बन जाएगा, ये बनेगा आपका 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल, इधर 1 बना तो ये बनेगा आपका a। जब आप नेगेटिव 1 रखेंगे तो c कितना बनेगा, दिस इज प्लस 2 एंड दिस इज नेगेटिव माइनस a। ठीक है, तो ये वैल्यूज आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपकी जो एसिम्पटोट्स आएंगी क्या आएंगी, y इक्वल टू x प्लस a, दूसरी क्या आएगी y इक्वल टू माइनस x माइनस a। सो x इक्वल टू a and these two are the asymptotes for the curve. Now we will discuss about reason of existence. So as we have discussed, this is the reason where for all values of x curve used to exist। कर्व था हमारा because you have to calculate values of y। तो इसके लिए जब आपकी y की पावर्स होती हैं तो उसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप y के सिंगल पावर में उसको कन्वर्ट कर दो। तो उसके लिए व्हाट यू डू, ये जो आपका है ये आप इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा आपका x प्लस a x माइनस और इधर है स्क्वायर। ठीक है, तो फ्रॉम हियर इट विल बी अंडर रूट प्लस माइनस x व्हेन यू टेक अंडर रूट ऑफ बोथ साइड्स, x माइनस x प्लस a upon x minus। ठीक है, and a is positive। Now you see for what values of x this under root can be negative, because if the term inside under root is negative, that means that will give imaginary values to us, right? So for what values of this expression can be y can be negative, obviously because x is belonging to r this real line, यहाँ से आपने वैल्यूज लेनी है। तो इसमें यहाँ 0 है, कहीं ये पॉजिटिव वैल्यूज है x की और ये नेगेटिव वैल्यूज है। अब आप ये देखो कि अगर आप x की वैल्यूज को a से ज्यादा रखते हैं, यहाँ कहीं सपोज करिए आपका a है, यहाँ कहीं नेगेटिव a है। ठीक है, अब आप x की वैल्यूज को a से बड़ा रखते हैं, या बड़ा नहीं छोटा बोलो, अगर आप x की वैल्यूज को a से छोटा रखते हैं तो ये जो एक्सप्रेशन है, जो ये डिनोमिनेटर है, ये नेगेटिव बनाएगा। जैसे सपोज करो तुम a/2 रखो, इसको a/2 रखोगे माइनस a करोगे तो नेगेटिव a/2 बनेगा। ठीक है, तो ये इमेजिनरी चला जाएगा अंडर रूट में, दैट मीन्स ये नेगेटिव में हो जाएगा अंडर रूट के अंदर का जो पार्ट है, दैट मीन्स y जो होगा वो नेगेटिव इमेजिनरी वैल्यूज देगा। जैसे कि मैं एक तुमको दिखाती हूँ, रख के सपोज करो मैं 0 और ये a के बीच में से माइनस a/2 x की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करती हूँ, तो यहाँ से क्या बनेगा, y इक्वल टू प्लस माइनस a/2 अंडर रूट, ऊपर कितना बना a/2 प्लस a 3a/2 अपॉन नीचे रखा मैंने a/2 माइनस a, कितना बना माइनस a/2, तो a/2 से a/2 कैंसिल, अंडर रूट 3 हो गया। अब
ये इसको क्या लिख सकते हो आप 3i² बिकॉज -1 की वैल्यू होती है i²। ठीक है, अब जैसे ही आप इसका अंडर रूट लोगे तो ये बनेगा 3i y = plus minus a/2 under root 3i which is imaginary which you do not consider in region of existence। ठीक है, तो 0 से लेके और a के बीच में अगर आप कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे x की तो वो y की आपको इमेजिनरी वैल्यूज देगा। दैट मीन्स ये 0 से लेके a तक तो हम कंसीडर कर ही नहीं सकते। x जब a से छोटा होगा तो हम उसको रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस में कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब इस डोमेन के अंदर तो जो ये इक्वेशन है इसका कर्व ड्रॉ ही नहीं होगा। अब अगर मैं नेगेटिव साइड बात करूं तो आप नेगेटिव साइड भी एक बार देख लें। कहाँ तक? -a तक। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज ले रही हूँ, सपोज करो क्या -a/2। तो जब मैं y की वैल्यूज को यहाँ मैंने रखा नेगेटिव a/2 तो अंदर क्या बन जाएगा? x इज नेगेटिव a/2 प्लस a अपॉन -a/2 माइनस a। तो ये क्या बनेगा? a/2 अंडर रूट, ये इधर पॉजिटिव बन गया a/2 अपॉन डिनोमिनेटर में कितना बना? -3a/2। तो ये तो सेम वही प्रॉब्लम, ये अंडर रूट के अंदर आ गया आपका 1/√3 जो आपको इमेजिनरी वैल्यूज देगा। दैट मीन्स पॉसिबल नहीं है। अब इतना तो क्लियर हो गया कि जो इसका रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस होगा वो -a से a तक तो बिल्कुल नहीं होगा। अब लेकिन इसके आगे क्या? a से इंफिनिटी तक क्या? a भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर आप a को रख दोगे तो 0 बन जाएगा, तो यहाँ ओपन रहेगा। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि इसके बीच नहीं लाई कर सकता, बट क्या इसके बीच लाई करेगा ये भी एक बार आप चेक कर लें। ठीक है, अगर आप a से बड़ी वैल्यूज रखेंगे, सपोज करिए आप x को 2a रख रहे हो तो रख लो इधर, तो क्या बन जाएगा? y² = 4a² कितना था? 2a 3a/a। अब जैसे ही आप अंडर रूट लोगे तो ये तो पॉसिबल है, पॉजिटिव है। कितना बना? √12a², दैट मीन्स प्लस माइनस 2√3a। तो a से बड़ी हर एक वैल्यू के लिए x की आपकी y की रियल वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। दैट मीन्स इस डोमेन के अंदर कर्व एग्जिस्ट करेगा। हमारे पास -a तक रेस्ट्रिक्शन हो गई थी। व्हाट अबाउट दिस डोमेन -a टू इंफिनिटी के लिए क्या क्राइटेरिया है? अब तुम वापस से सपोज x की वैल्यू आप -2a रख के देख लें तो क्या बन जाएगा? y² = नेगेटिव रखोगे तो x² है तो 4a² -2a प्लस 1 अपॉन -2a माइनस 1। तो यहाँ कितना बनेगा? ये -a अपॉन -a। तो ये क्या हो गया आपका? कैंसिल हो गया पॉजिटिव, यानी कि x की वैल्यू -a से इस साइड में नेगेटिव जब आप रखेंगे तो ये भी नेगेटिव बनेगा वैल्यू, ये भी नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल करके पॉजिटिव दे देगा। एंड ड्यू टू द स्क्वायर वैल्यू ऑफ x हियर ये आपको पूरा पॉजिटिव मिलेगा, जिसके लिए y की रियल वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो यानी कि इस डोमेन में भी आपका कर्व एग्जिस्ट करेगा। दैट इज जो आपका रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस है, दैट इज या तो आप लिखो r माइनस क्या था अपना माइनस प्रोजेंट a2, या फिर आप लिखें कि -∞ टू -a यूनियन a टू इंफिनिटी। दिस इज द रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। बात है लास्ट पॉइंट जो ओवरऑल हम सब समझ गए। अब एक जो हमारा मेन होता है नेचर ऑफ कर्व, मतलब जिसमें हम वैल्यूज रखते हैं। अब तुम्हारे पास एक तो है डोमेन ये वाला, एक है ये वाला, ठीक है, और इसमें आइसोलेटेड पॉइंट भी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसको ड्रॉ का बताती हूँ। शुरू से चलते हैं। सबसे पहले द फर्स्ट पॉइंट वाज सिमेट्री। सिमेट्री वाज अबाउट एक्स एक्सिस, दैट मीन्स जो कर्व आपका एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा वही आपका नीचे बनेगा। ठीक है, इस फर्स्ट पॉइंट से हमको ये मालूम हुआ। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या था? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट्स में आपके आए थे 0 0 -a0। अब इसके बाद थर्ड क्या था कि कर्व हमारा ओरिजिन से पास होता है और उस पर हमने टेंजेंट्स निकाली थी जो हमारी आई थी y =
plus minus iota x, because these are imaginary, so we cannot draw it on the x-axis, sorry xy plane. उसके बाद हमने निकाली थी एसिम्पटोट. एसिम्पटोट वाज x इक्वल टू a, y इक्वल टू x प्लस a एंड y इक्वल टू माइनस x माइनस a. ये थी तीनों. तो इनको ड्रॉ कर लो. x इक्वल टू a is somewhere here, a0. This is x equal to a. What? Yeah, 0, a. So this line is y equal to x plus a. ठीक है, ये अपनी हमने ये ड्रॉ कर ली. अभी उसके बाद रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस है. रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस में हमें समझ आ गया कि यहाँ से लेके और इसके अंदर कर्व ड्रॉ नहीं होगा, है ना. ये पॉइंट्स के अंदर इसमें नहीं होगा. अब इसमें आपको मल्टीपल पॉइंट्स में 0 0 आइसोलेटेड पॉइंट आया था. अब कर्व कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, वो देख लेते हैं. तो उसके लिए मैंने तुमको बहुत इजी बताया था कि आप कुछ पॉइंट्स ले लें और उसके बाद उन पे वर्क करें. तो मैंने क्या किया, मैंने कर्व को समझने के लिए यहाँ 0 से लेके, सपोज करो यहाँ, ये मैंने ज़्यादा ही बड़ा बना दिया, ये 2a है, यहाँ कहीं 3a है. ठीक है, और इसी तरीके से हमें यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक नेचर चेक करना है. तो यहाँ कहीं -2a होगा, कहीं -3 होगा, -4 है, इस तरीके से. तो हम क्या करते हैं कि मैं यहाँ से यहाँ तक कर्व का नेचर चेक कर लेती हूँ. यहाँ तक भी कर सकते हो तुम, बट इसी के अंदर इतने सारे पॉइंट्स होते हैं, तो मैं एक इस सब इंटरवल पे काम कर लेती हूँ और उसके अकॉर्डिंग फिर हम डिस्कस करेंगे कि आगे कर्व किस तरीके का बिहेव करेगा. तो ये मैंने आपको बताया था कि जैसे इस सब डोमेन में तुम काम कर रहे हो तो इसके कुछ पॉइंट्स आप ले लें. ठीक है, तो जैसे इसका इसका होगा हाफ 3a/4, हाँ ये सॉरी 3a/2. इसका और इसका हाफ करेंगे आप तो कितना बनेगा, 4a. 7a/4. इसका इसका हाफ करेंगे तो कितना पॉइंट बनेगा, ये बनेगा 5a/4. ए तो आएगा ही नहीं, इसके बाहर के जो पॉइंट्स हैं, जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसके बीच में और आप पॉइंट्स कंसीडर कर सकते हैं. इन पे आप वैल्यूज निकाल ले y की, तो और उनको फिर कर ले ड्रॉ, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कर्व का बिहेवियर पता चल जाएगा. और सेम आपने करना है जो आप इधर नेगेटिव वाले कर रहे हो, -a से इधर. ठीक है, तो मैंने x लिया, y लिया, तो x की वैल्यू मैंने कितनी ली है, पहले 5a/4, उसके बाद क्या थी 3a/2, उसके बाद 7a/4 और उसके बाद मैंने ली है 2a. तो इनकी मेरी वैल्यूज आती है, क्या आएगी हमारी 2.1 समथिंग a. ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज आ गई हैं. अब इनको हम ड्रॉ कर लेते हैं. अब आप देखो कि ये कौन सी वैल्यू थी, 5a/4. 5a/4 पे वैल्यू आई 3.75. तो ये a है, ये मैंने कुछ ज़्यादा ही ले लिया, ऊपर मैं ज़्यादा बढ़ा नहीं पाऊंगी मैक्सिमम. चलो यहाँ तक हमने ले लिया y. तो ये सपोज 2a बना, 0 2a, ये 0 3a, ये 0 4. ठीक है, a के मतलब 4 टाइम्स मल्टीपल. तो अब जब मैं ये कर्व की वैल्यूज देखूंगी तो 5a/4 पे वैल्यू है 3.75, मतलब इससे कुछ ज्यादा. यहाँ कहीं मैं प्लस का कंसीडर कर रही हूँ क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, जो ऊपर बनेगा कर्व सेम नीचे बन जाएगा. तो मैं पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर कर रही हूँ 3.75. और ये यहाँ से गया तो सपोज करिए यहाँ कहीं है ये वैल्यू. ठीक है, अब इसके बाद क्या थी 3a/2, उस पे कितने 3.35, यानी कि इससे ज्यादा ही है यहाँ कहीं. सपोज करो ये है वो पॉइंट. ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि इधर से तो डिक्रीज कर रहा है और इधर से चलेंगे तो इंक्रीज कर रहा है कर. अब उसके बाद क्या है 7a/4, इस पे वैल्यू कितनी है 2.1. तो ये 2.1 यहाँ कहीं आएगा. तो ये आ गया सपोज करो यहाँ कहीं. ठीक है, 2a पे कितना है 3.
0.46। अब देखो कितना इंक्रीज किया है इसने एकदम से, यहाँ से वैल्यू डिक्रीज हुई, इसके बाद यहाँ पे एकदम से इंक्रीज हो गई, तो ये आपका 2a कहाँ होगा और 3.46 आपका होगा यहाँ। तो इतना तो हमको समझ आ गया कि कर्व ऊपर से इसके इधर की वैल्यूज के लिए कर्व कहीं ऊपर से आया है, आया आया आया। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए जाहिर सी बात है उसको ऐसे इस तरीके से घूमना पड़ेगा। आगे भी तुम वैल्यूज देख लो, ये लाइन कुछ ऐसे गई होगी, ये ड्रॉ करने में कुछ ऐसे होगी, ये इस तरीके से जाएगा ऐसे। एसिम्प्टोट है ना, तो जो कर्व होता है वो उसके पैरेलल सा ही हो जाता है टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो ये कुछ इस तरीके से कर्व बनेगा। तो इन पॉइंट से तुमको आइडिया हो गया ना कि इस इंटरवल में ये डिक्रीज कर रहा है और फिर इधर इंक्रीज कर रहा है। अब देखिए सिमेट्री है तो सेम बिहेवियर नीचे करेंगे। ठीक है, तो अभी इस वाले डोमेन पे तो हमने काम कर लिया, अभी हमारा ये वाला भी बचा है। तो इसके लिए फिर आप क्या करें, -2a से a के बीच में वैल्यूज लें और फिर से उनको ड्रॉ करें। आइडिया देखेंगे यहाँ पे, तो मैंने सेम वैल्यूज को लिया है, दिस इज 1.15a। अब आप जब y की वैल्यूज रखोगे तो -3/2 a के कोरेस्पॉन्डिंग आती है 0.68। कर्व किस तरीके का बनेगा, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। And because this is the intersecting point minus a0, that means curve has to pass through this point। तो ये कर्व किस तरीके का बनेगा आपका, इस तरीके का। And because this has symmetry about x-axis, तो यहाँ से आया और इससे क्रॉस हो गया, इस तरीके का। तो जो भी आपका इस इक्वेशन का कर्व है उसमें ये वाला कर्व बना है, एक ये कर्व बना है और इसके सिमेट्रिक एक नीचे कर्व बना है। ठीक है, अब इस पॉइंट से तो कर्व क्रॉस होके निकल भी गया, लेकिन ये भी तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, इससे भी तो मैंने हमेशा आपको यही बताया कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उससे कर्व पास होता है, लेकिन इससे नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दिस वाज द आइसोलेटेड पॉइंट। तो कर लेंगे अब आप मल्टीपल पॉइंट के क्वेश्चन।